Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and how the month of October is going to pan out for the Virgo Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord Mercury. Mercury is going to transition through the first house, its own house, in the month of October, and Ascendant Lord transitioning through Ascendant is always considered very good. Now here it is going to create a combination along with Sun and Venus. In this case, Venus is in its debilitated sign. Mercury being in its own sign will ensure that the good results of Venus are continue to be delivered to the Virgo ascendant people. In this case, ascendant lord is in ascendant and second lord Mercury is also in ascendant. What it would mean is that you would seek money in the month of October and you need to carefully evaluate any kind of money making opportunity that come to your way in this month, especially in the work sphere. It also becomes very important how you represent yourself in the professional arena because Mercury is also the Lord of 10th, the Lord of Karma or action, and it is again transitioning through the first house. It means how you represent or you project yourself in the professional arena becomes very, very important. In this case, the advantageous part is that Jupiter's seventh aspect is also getting casted on Mercury, and this is going to be very fruitful for people who have their own businesses. And the month of October is going to be very good for people who run their own business because Mercury itself is also a significator of commerce or a business. So, month of October will prove to be a very good time frame for people who run their own businesses. Now we will also take a look at the movement that is going to happen for Venus and Sun. Venus will remain stationed in Virgo till 18th of October and Sun will remain here till 16th of October. Now what will happen after 16th October is that Sun will move to its debilitated sign in the second house where it will be joined by Venus on 19th of October. Now again what will happen is that Sun moves to the debilitated sign but Venus moves to its own sign. So Sun will also see its cancellation of debilitation similar to what Venus will experience in the first half of October. Venus debilitation is going to be cancelled by Mercury, and when Sun moves to the second house and undergoes debilitation, that DB is going to be cancelled by Venus. So, in this case, again, Venus is the second lord, and second lord in second will again mean that money making opportunities will arise for you in the month of October, and it is up to you to decide what opportunities do you want to take. Even if one wants to invest, you will see that some very basic ways of investment like a fixed deposit will be much more helpful because Ketu here would mean the old or the very fundamental ways of investing that will be more beneficial for you in the month of October. Be assured that money making opportunities will come to your way. Now, Sun is also the owner of the 12th house and it will remain in the first house till 17th of October, and this will give rise to your ego. And the key is to control that ego at least till the time Sun is sitting here. So 17th of October would be the time one needs to work on controlling their ego. After that, as I said earlier, once Sun and Venus move in the second house, craving for earning money will rise, but at the same time, opportunity to build self-earned wealth will also rise in the second half of October. Jupiter is the lord of fourth and seventh house and is currently passing through its own sign, but it is going to be in the star of Saturn. So it will also give you the results of fifth and the sixth house. People who are unmarried will have an opportunity to get married in the month of October as well. And the best dates for getting married in October would be 12th and 13th of October and 24th and 25th of October. People who are planning to start their own business, again, this is a very good time to start your own business because Jupiter transitioning from here will continue to give you that opportunity. Saturn is the owner of fifth and sixth house for the Virgo ascendant people, and Saturn will be passing through the star of Mars. So, Mars is actually a staunch enemy, and that is the reason why people will have to resort to creative ways in order to generate returns through speculation. Mere aggression will not work. But overall, it will be difficult to earn money through speculation in the month of October because the third and eighth houses will also get evoked.
and activation of these houses would mean that chances of losing money would be far higher unless you have exceptional technical analysis skills, because Mars also indicates technique or any technology related stuff. So best date for speculation will be between 20th and 21st of October. If you are a student, then Saturn will ensure that you will have to work very, very hard before it starts to give you the results. Now we will also look at Mars. Mars will be transitioning through the ninth house till 15th of October. It has been placed here for quite some time, but after 15th, it will move to the 10th sign. Again, 10th sign, Mars will be in the sign of Mercury, and both of them do not get along well. But again, coming to Mars, it always fills people with a lot of energy, and this time, this abundance of energy will be seen at workplace. The best way to utilize this energy would be to maintain a very clear line of communications with the stakeholders and not to get into any kind of a argument with them, because this Mars makes the person aggressive in their actions, and sometimes it is seen to be very intruding by the other stakeholders. So the idea is to utilize that energy in a proper way and not to let it spill out of your control. Rahu is moving through the eighth house, and eighth house is also the house of speech of your spouse. So whenever Rahu is passing from here, it is going to make sure that your husband or wife is going to use their tongue or their speech in order to irritate you or to cause trouble for you. So again, it is advised not to take what they speak to your heart, and just try to avoid any conflict with them, because otherwise it's not going to turn out to be really well for you. And there are also certain dates when a person needs to be very careful in every month. For the Virgo ascendant people, 9th, 10th, and 11th of October are 3 days when they need to watch out for their health. This will be a tough time from the health perspective. 14th and 15th of October, just try to be cautious, watch out for people who may end up cheating you in this month. And 22nd and 23rd of October would be the time which you can best spend in shopping in malls or donating to the charity. So these are some of the dates when you need to watch out for in the month of October. Overall, the ascendant lord's strong position in the ascendant, and then the debilitation getting cancelled for both Venus and Sun is a good news, because Venus is also the natural significator for luxury, and it also happens to be the second house lord for Virgo ascendant people. In this case, its combination with Sun in the month of October would also mean that you may get some opportunities to earn money from foreign places. So please be on the lookout for that. But overall, a good month if you look at from the money earning perspective. So that's the summary for the Virgo ascendant people for the month of October. So if you have liked this video, I would request you again to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कन्या लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसे स्पेल आउट होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश बुध लग्न से ही गुजर रहे हैं, और जब भी कभी लग्नेश लग्न से गुजरता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। यहाँ पे एक बहुत ही पेक्यूलियर टाइप की पोजीशन बन रही है, क्योंकि बुध का जो एसोसिएशन है वो शुक्र और सूर्य के साथ भी हो रहा है, और शुक्र कन्या लग्न में नीच राशि के होते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र का नीच भंग बुध कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है शुक्र बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन की, ये व्यक्ति के लिए कई बार पैसे दिलाने का काम करती है, व्यक्ति को पैसों की तरफ लेके जाती है। यहाँ पर चूंकि शुक्र द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो द्वितीय भाव के स्वामी का लग्न में बैठना वैसे तो पैसा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन यहाँ लग्नेश भी लग्न में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी भी लग्न में बैठा है। तो व्यक्ति को एक ओढ़ निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं चाहत पैसा जनरेट करने की, और इस महीने में मौके भी बहुत मिलेंगे पैसे कमाने के। लेकिन ये अब कन्या लगने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं। ये आपके ऊपर है। हर तरह की अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने वाली नहीं होगी अक्टूबर में, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के देखना पड़ेगा कि हम कौन सी ऐसे मौके उठा सकते हैं जिससे हमें धन मिले बिना चोट पहुंचाए। और
यहाँ पर दशमेश भी बुध बनते हैं कन्या लग्न वालों के लिए, तो दशमेश का भी प्रथम भाव से जाना, यानी आप अपने आप को कैसे दिखाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं अपने कार्यस्थल पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये स्थिति आपकी अक्टूबर में भी बनेगी, इसलिए आपका परसेप्शन कार्यस्थल पे कैसा बनता है, ये इसके प्रति आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पैसा कमाने के मौके प्रोफेशनल लेवल पर भी मिलेंगे, तो यहाँ पे मौका बहुत है इस महीने में वेल्थ बनाने का। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य विराजमान रहेंगे 16 अक्टूबर तक, और उसके बाद वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे 17 अक्टूबर से, जहाँ पे वो अपनी नीच अवस्था में होंगे। लेकिन ये अवस्था सिर्फ 2 दिन रहेगी, 2 दिन बाद शुक्र 19 अक्टूबर को अपनी राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र का अपनी राशि में आना यानी कि सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी महीने के पहले हाफ में शुक्र का नीच भंग बुध की वजह से प्रथम भाव में हो रहा था। तो इसकी वजह से सूर्य भी अपने खराब परिणाम द्वितीय भाव में नहीं देगा। तो यहाँ पर केतु, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रह एक साथ मौजूद रहेंगे अक्टूबर के महीने में। लेकिन यहाँ पे शुक्र आपको लक से भी, ट्रैवलिंग से भी, और चूंकि सूर्य का भी वो नीच भंग कर रहा है और सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, तो फॉरेन से भी पैसा कमाने के मौके आपको देता रहेगा। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, या आप कहीं भी हॉस्पिटल या फॉरेनर से एमएनसीज कंपनीज में काम करते हैं, तो भी ये आपके लिए पैसा देने वाला टाइम रहेगा। आपको पैसा कमाने के मौके पूरे महीने में मिलते रहेंगे। और खास करके द्वितीय भाव में जब ये यहाँ पर नीच भंग का हो योग बन जाएगा शुक्र सूर्य का साथ में, तो और ज्यादा आपको मौके मिल सकते हैं। गुरु सप्तम भाव से भ्रमण करेंगे अक्टूबर के महीने में और शनि के नक्षत्र से गुजरेंगे, तो व्यक्ति को, आप अगर कोई भी पार्टनरशिप्स में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का, या फिर आप कोई जैसे आर्ट गैलरी खोलते हैं या कोई भी आर्टिस्टिक काम से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये गुरु आपको हरी झंडी दिखा रहा है अक्टूबर के महीने में। यहाँ पे गुरु अपनी 7वीं दृष्टि लग्न स्थान पे भी डाल रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि लग्नेश का लग्न में और सप्तम भाव से गुरु का अपनी राशि से लग्नेश को देखना, ये बहुत अच्छा पोजीशन क्रिएट करता है व्यक्ति में, एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो। और यहाँ पे बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को, जितने भी अनमैरिड लोग हैं उनको मौका देता रहेगा शादी करने के अप्रैल 2023 तक, जब तक कि वो यहाँ से स्थानांतरण उसका हो नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन तारीख है अक्टूबर के महीने में, वो 12-13 अक्टूबर है और 24-25 अक्टूबर है। 4 दिन बहुत अच्छे हैं अपनी शादी फिक्स करने के लिए, एटलीस्ट उसका प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। ये और भी अच्छा समय है अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड काम में हैं, या फिर आप किसी भी जमीन के अंदर उगने वाली चीज का भी बिजनेस करना चाहते हैं, फल सब्जियां हो गए, या आपके जो जमीन से निकलती हैं चीजें जैसे केमिकल्स हैं, आपके मिनरल मेटल्स हैं, या फिर लोहा वगैरह, उनके लिए भी अच्छा समय है अगर आप वो बिजनेस करना चाहते हैं तो भी। एक नज़र शनि पे भी डालते हैं। शनि 5वें 6वें दोनों भाव के स्वामी बनते हैं, और इस समय वो 5वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं। अभी अक्टूबर के महीने में शनि मंगल के ही नक्षत्र से गुजरते रहेंगे, तो आपको मंगल के भी परिणाम दे के जाएगा शनि, यानी तृतीय और 8वें भाव के। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप पंचम भाव से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो इसमें आपको मेहनत बहुत लगेगी और परिणाम उतने मिलेंगे नहीं। पंचम भाव से आप शेयर बाजार या सट्टे का बाजार भी देखते हैं, तो इन लोगों को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नए तरीके ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र से जाएगा। मंगल टेक्नोलॉजी को भी दिखाता है, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो आप कोई ना कोई तरीका आपको नया निकालना पड़ेगा अक्टूबर के महीने में पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि तृतीय और अष्टम दोनों भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इधर काफी एक तो रिसर्च करना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि अष्टम भाव से आपके बहुत ज़्यादा गेन या बहुत ज़्यादा लॉस भी दिखते हैं, लेकिन उसके साथ तृतीय भाव का भी एक्टिवेशन हुआ है, तो यहाँ पे व्यक्ति के पैसे गंवाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है बजाय कि वो पैसा अर्न करने के। इसलिए अगर आप स्पेक्यूलेशन के क्षेत्र में, तो बहुत सोच समझ के अक्टूबर के महीने में मैदान में उतरिए। जो अच्छे दिन हैं अक्टूबर के महीने में, वो खाली 20 और 21 अक्टूबर है, 2 दिन जब आपको प्लानिटरी सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत हॉस्टाइल होने वाला है अगर आप स्पेक्यूलेशन में हैं तो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शनि तो बिना मेहनत किए कुछ देता ही नहीं है, तो इन लोगों को तो जब तक शनि यहाँ बैठा हुआ है जनवरी 2023 तक, तब तक कमर तोड़ के मेहनत करने के लिए
तैयार रहना ही पड़ेगा। मंगल 15 अक्टूबर तक 9वें भाव में बैठे रहेंगे, इसके बाद वो दशम भाव में मूव कर जाएंगे। दशम भाव में मिथुन राशि पड़ती है और बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है। तो जब भी मंगल कर्म स्थान से गुजरता है तो व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है अपने कार्यस्थल पर। लेकिन यहाँ पे चूंकि दुश्मन की राशि पड़ती है तो व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पे लोगों से उलझना बचना चाहिए। कई बार लोग क्या है अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये इनके खिलाफ काम करेगा। तो झगड़ा मत कीजिए किसी के साथ, भले ही आप अपना पॉइंट अग्रेसिवली किसी के सामने रख दे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद से बचिए, नहीं तो ये फिर एनर्जी आपकी नेगेटिव साइड में जाने लग जाएगी। यहाँ पर अभी राहु भी अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और राहु भी आपको मौके देगा ऐसे बनाने के, क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र से जाएगा और शुक्र अपनी राशि में बैठ के राहु और शुक्र आमने सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिसर्च के लाइन में हैं तो भी आप पैसा बना सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपको उस तरह के मौके मिलेंगे। अष्टम भाव का राहु यानी कि आपके पति या पत्नी का द्वितीय भाव, यानी कि उसकी वाणी का या उसके परिवार का स्थान। तो आपके अपने इन लॉज के साथ गलत फहमियां हो सकती हैं अक्टूबर के महीने में, और आपके स्पाउस का जो स्पीच है ये आपको हर्ट करता रहेगा जब तक राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो फिर से वही बात है कि राहु माया दिखाने का कार्य करता है। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं भी आया है उससे ओपनली डिसएग्री मत कीजिए, अपना एक पर्दा जिसको बोलते हैं वो बना के रखिए, नहीं तो ये फिर राहु यहाँ से जाता हुआ व्यक्ति को खराब परिणाम देके जाता है। आपको इस समय में कमर के नीचे वाले भी रोग हो सकते हैं, जैसे पाइल्स हो गया या और किसी प्राइवेट पार्ट्स की बीमारियां हो गई, तो उसके बारे में भी थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि राहु वैसे ही मलिच्छ ग्रह कहलाता है, गंदा जिसे हम कहते हैं। तो ये इस तरह के रोग देके जाने की भी इसमें क्षमता रहती है। कुल मिला के राहु का अष्टम भाव से भ्रमण या जन्म कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि ऐसे लोग प्रॉब्लम्स को बुलाते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपका राहु अष्टम भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों की जीवन में कोई दिक्कत होती नहीं, ये बाहर से समस्या को अपने घर में बुलाते हैं, आ बैल मुझे मार जिसे हम कहते हैं, उस तरह की हरकत ये लोग करते हैं जीवन में। तो गोचर से जाता हुआ राहु भी व्यक्ति को परेशानी करता है। अब महीने में हमेशा कुछ ऐसे दिन होते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से निकलता है, और ये वो इन दिनों में व्यक्ति को कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्योतिषी भी हैं तो आप देखेंगे कि अगर जब आपका चंद्र 6, 8, 12 से निकलता है तो भी आपके कई बार प्रिडिक्शंस गलत होते हैं, क्योंकि चंद्र को यहाँ पे ऊर्जा नहीं मिल पाती, और इसीलिए इन त्रिक स्थानों का बड़ा महत्व है, क्योंकि 6, 8, 12 में जब भी ग्रह बैठा होता है तो उसको एनर्जी नहीं मिलती जो उसको चाहिए होती है। अक्टूबर के महीने में आपको 9, 10, 11 जो है ये हेल्थ के हिसाब से अच्छे दिन नहीं है, चंद्र यहाँ से गुजरेगा तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भी होती है कई बार। तो 9, 10 और 11 में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। 14, 15 अक्टूबर को आपको किसी भी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना है, और व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं तो भी सावधानी से चलाइएगा इस टाइम में। और 22, 23 अक्टूबर आपके लिए खर्च करने वाला समय होगा, क्योंकि चंद्र 12वें भाव से गुजरेगा। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए आप खुद ही शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग कर लीजिए या किसी चैरिटी में पैसा डोनेट कर दीजिए, तो आप इसकी नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ये जो स्थिति बन रही है लग्नेश का लग्न में गुरु की दृष्टि, और बाद में सेकेंड हाफ अक्टूबर के सूर्य का नीच भंग होना शुक्र के हाथों, ये अच्छी स्थिति है। पैसे के काफी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और आपको खाली ये देखना है कि आप जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, कहीं मौका मिलता है, कहीं बाहर से कार्यस्थल पे कुछ नया करने का मौका मिलता है, तो आंखें बंद करके उसके पीछे मत भागिए कि मेरे को पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। उसको अच्छे से इवेलुएट कर लीजिए कि क्या आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए परसू कर सकते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय जल्दबाजी करने के। मौका तो आपको पूरे अक्टूबर में मल्टीपल टाइम मिलेगा ही पैसे बनाने का। तो कुल मिला के आपकी समरी है अक्टूबर के महीने की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।